So we'll be discussing about yoga for health and wellness now. So what do you mean by health as per WHO? WHO says that health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease. So it is not about like, आपके अंदर कोई disease नहीं है तो आप मतलब healthy हो. It is not like that. You might have some challenges with your mind as well. आप stress में हो, but it is not visible to your body. So physical disease के absence को आप ये नहीं बोल सकते तो कि आप एक healthy state of person हो. So health का definition is like complete physical, mental and social well-being. This is very important. Now wellness is a state of being in optimum mental and physical health. So health and wellness का definition WHO ने this is they have given. ये हमारे understanding के लिए so that we are not stuck with only physical thing. Okay, अभी आ जाते हैं yogic principle. Yogic principle help us to lead a misery-free and a happy life. योगिक प्रिंसिपल्स हम अगर यूज करते हैं अपनी लाइफ में, अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वी आर अल्टीमेटली फाइंडिंग अ हैप्पी लाइफ. Obviously, this is the ultimate goal of every individual, that he wants to be, he or she wants to be happy in this world. Okay, and that's the core goal of a yoga when you talk about this modern life. Yoga is an integrated and holistic development of our physical, mental, and spiritual well-being. So yoga is not only developing your physical well-being, but it also help you to cure mental and spiritual health. And that is the core agenda, or I would say core priority, or सबसे important target ही योग का यह है. It is not that you are physically fit. It has the main benefit when you get mental and spiritual health. Yoga help you to embrace a lifestyle effective in reducing stress and overall health and wellness. Obviously, stress we all know कि एक सबसे बड़ा मतलब एक ढाल बना के बैठा हुआ है this modern world में. And you all know that जो मेजोरिटी लोग है ना, उनको पता नहीं है कि they are in stress, but there is a stress. हम डे टू डे एक्टिविटीज में स्ट्रेस हमारे को कहीं ना कहीं हम एवरी डे टकराते ही है उससे. बट व्हेन you are a yogi or yog sadhak, or when your awareness goes on a higher side, then you become more aware towards what is right, what is wrong, what is impermanent, what is permanent. तो उससे आपको एक awareness build होती है कि I'm not supposed to get stress due to this small issue. Okay, so that awareness we are going to build. So we will understand need of yoga in modern life. So need किसके लिए है? Physical health के लिए, mental health के लिए and spiritual health के लिए. Physical health क्या है? More hospitals. The topic is physical and physical health and wellness के बारे में हम discuss करें, ठीक है ना? So we will be talking about physical, mental and social or spiritual well-being. More hospitals, more methods, more instruments, more specialists, still more diseases. ऐसा देख रहे हो आप, देखो मतलब मॉडर्न एरा कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी बिल्ट हो रही है, हॉस्पिटल्स इतने बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स अलग अलग टाइप्स के आ गए आपके पास, ठीक है ना. पहले तो एक ही डॉक्टर हुआ करता था और सब ट्रीटमेंट उनसे आप ले लेते थे. नाउ यू फाइंड डॉक्टर्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग. स्टिल डिजीज जो है ना, वो भी कॉम्पीट कर रही है डॉक्टर के साथ में. मतलब कि तुम जितने ज्यादा बढ़ोगे उस लेवल पे वो डिजीज भी अपने हिसाब से बनती जा रही है. एंड एवरी day you find a new disease coming in, or viruses you can say. Through षट कर्मास, ठीक है ना. षट कर्मा इज कॉल्ड शुद्धि क्रियास, ठीक है. बंधस, जो हम प्राणायाम में बंध लगाते हैं, वो लेवल 1 में वो आएगा. वॉलंटियर्स में बंध का थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. षट कर्मास में कुछ चीजें इसमें भी दी गई है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. Asanas, pranayam, cleans the body, improves immunity and strengthen all physiological system. Now again, it is not about that by doing only asanas we will be strengthening our physiological system. We also have to have chatkarmas doing on regular basis. We apply bandhas, we do mudras, we have to do pranayam,
and that's how we can overall clear our body and improve our immunity system, and it helps us to correct the structure of our body. That's the main goal of I mean physical level पे अगर हम देखेंगे तो. Now let's go to mental health. Mental health is nothing but through pratyahara. Okay, improves mental health, cure psychosomatic disorders. Now मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कल मैंने डिस्कस करी थी प्रत्याहार के बारे में, जो 8 लिम्स हमने डिस्कस किया था, धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग के लिम्स है. उसमें प्रत्याहार में मैंने बोला था कि कंट्रोलिंग योर सेंसेस. अब ये जो 5 सेंसेस है उसकी वजह से हमारा ध्यान भटकता है. ओके, वी गेट इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स पीपल, वी गेट इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स समथिंग व्हिच वी वांट टू ईट, टेस्ट के हिसाब से हम उस तरफ जाते हैं. व्हेन you go into yoga, you start practicing that, कहीं ना कहीं आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का एक तरीका मिलता है. यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर सेंसेस. उससे जब आप अपने आप को, लेट्स से आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो आप क्या करते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो ना, मेरे को ये चाहिए और नहीं दिया किसी ने, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां हैं जो उस तरफ अट्रैक्ट कर रही है आपको, और आपको नहीं मिला तो आप गुस्सा कर रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, एंड दैट स्ट्रेस लीड्स टू साइकोसोमेटिक डिजीज. साइकोसोमेटिक डिजीज से फिर आपको बहुत सारी जो इश्यूज है बॉडी में वो होना शुरू हो जाते हैं. कभी आपको गुस्सा आता है तो आप देखो ना, आपका हार्ट बीट एकदम से चालू हो जाता है धनाधन. तो कहीं ना कहीं वी आर फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ एज वेल विद द हेल्प ऑफ प्रत्याहारा. इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ बैलेंस. अभी स्ट्रेस में आप क्या करते हो, एक ही तरफ चले पड़े हो, मतलब कि आपको करना है अपना टारगेट कुछ भी करके, मतलब आपकी लाइफ जो है घर पे वो बैलेंस हो नहीं पा रही है बिकॉज आप इस तरफ एक तरफ. तो इट हेल्प्स यू टू बैलेंस योर लाइफस्टाइल. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ऐसा अवेयरनेस बिल्ट होता है ना कि यू फाइंड अ वे टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर लाइफ. इट्स ओके, आई मीन थोड़ा इस तरफ कम करेंगे, थोड़ा इधर बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट राजू एक तरफ एक साइड में रहेगा, सो दैट जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उसमें आजकल जो इश्यूज आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल इश्यूज ओनली. नो, यू डोंट शेयर थिंग्स. ओके, और ईगो कहीं ना कहीं बीच में आता है, एंड इट रेजिस्ट अस टू शेयर मेनी मेनी थिंग्स, और उसकी वजह से बहुत सारे क्लैशेस हमारे फैमिली में आजकल हमको देखने को मिलते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ. स्पिरिचुअल हेल्थ थ्रू धारणा ध्यान एंड समाधि improve spiritual health. अभी धारणा ध्यान समाधि is nothing but focusing on one object or meditating, concentrating, focusing on your breath. जो हम नीचे बैठ के प्राणायाम करते हो, प्राणायाम के बाद आपको जो आगे के जो 3 लिम्स है अष्टांग के, धारणा ध्यान समाधि, उसके ऊपर फोकस कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल वेलबींग की तरफ आपको बढ़ाता है, जिसमें आपका जो नेगेटिविटी है उससे आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ आते हो. बिकॉज एज पर ऋषि, नेगेटिविटी इज क्राइम. दे बिलीव इन, इट इज नॉट अबाउट पॉजिटिविटी आई वुड से, बट इट इज इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड. कि पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड विच इज की इन योगा एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट. क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा ही ज्यादा पॉजिटिव होगा तो आपका ईगो वापस से उठेगा, जगेगा, और वो ईगो जो है वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है. इंप्रूव लाइफ मेक्स इट हैप्पियर, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, चली गई. एनीवेज, ओके. पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इल हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको समझना है इस चीज को. थोड़े से संस्कृत वर्ड है, इसको मैं अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक लेमैन लैंग्वेज में ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट हम इस चीज का, ये कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं समझ सके. क्योंकि आगे जो स्लाइड्स आ रही है ना वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको भी मैं अपने आसान भाषा, बोलते हैं ना, आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा. तो अब ये त्रिताप क्या है? त्रिताप मतलब, ताप मतलब क्या होता है? दुख. ओके, तो योग में ना 3 ताप के बारे में बोला गया है. इंसान को ना 3 ही ताप होते हैं. अपने इधर तो जो डिजीज बोल सकते हो आप, तो उसी हिसाब से ये त्रिताप ही है, जिसमें एक पहला आता है आदि भौतिक. ठीक है, आदि आदि मतलब डिजीज. ठीक है, अब ये भौतिक बीमारी है. भौतिक बीमारी का मतलब क्या होता है बताएं, कि जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे किसी ने किसी को मच्छर ने काट लिया,
ओके, दैट इज कॉल्ड आदि भौतिक, मतलब कि हमारे कंट्रोल में कहीं ना कहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उससे बच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हो गया बाइक से, आपने ड्राइविंग कर रहे हो और आप बाइक राइड कर रहे हो और आप कहीं पे किसी के किसी को टक्कर मार दी, या फिर आपको किसी ने टक्कर मार दी और आप गिर गए और आपको कहीं ना कहीं चोट चोट लग गई। सो दैट इज आदि भौतिक, मतलब कि जो नॉर्मल, जो आउटर वे में या फिर बाहर की जो प्रकृति के अंदर भी इश्यूज होता है, अभी उसमें भी दो दो चीज है, एक आदि दैविक और है, ठीक है ना। उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको आदि भौतिक समझ में आ जाएगा। मच्छर ने काटा, जैसे मलेरिया हो गया आपको, तो अभी उसके लिए आप किसको दोष दोगे? मच्छर को दोष दोगे ना, मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो मच्छर है उसकी वजह से हुआ है। अब आदि दैविक एक्सप्लेन करूंगा तो आदि भौतिक आपको और इजी में समझ में आ जाएगा। आदि दैविक, दैविक मतलब क्या होता है? आदि तो आपको समझ में आ गया, डिजीज है। दैविक मतलब देव, दैवीय शक्ति, ठीक है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं जो ऐसी चीज आपके साथ होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज आप बोलो, सुनामी आ गई, अभी आप उसमें क्या करोगे? सुनामी आ गई है मतलब सबको बह के जाना है, अगर आप उसके जाल में आ गए हो तो। भूकंप आया है, या फिर ज्वालामुखी फटी है और उस केस में ज्यादा रेन हो गई है, ठीक है ना, बाढ़ से आप निकल लिए, तो ये सारे जो है ना, ये आदि दैविक, तो ये एक है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी भौतिक का मतलब आप समझ गए कि जो ऐसी एक्टिविटीज जो आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आध्यात्मिक। आध्यात्मिक इज नथिंग बट आपका माइंड से उत्पन्न होने वाली बीमारी, एंड आई वुड लाइक टू पुट सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर बीमारी बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द इलनेस इज कमिंग फ्रॉम आध्यात्मिक। यहाँ पे डॉक्टर भी मेरे को लग रहा है जो तो एक दो है बैठे हुए हैं, तो दे ऑल नो कि मेजर जो बीमारियां आजकल उत्पन्न होती है ना, दैट कम्स फ्रॉम आवर माइंड। एंड माइंड में कैसे? पहले वो आती है स्ट्रेस में, स्ट्रेस साइकोसोमेटिक, ठीक है ना। साइकोसोमेटिक मतलब कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस तो देखो डे टू डे लाइफ में आता रहता है, जाता रहता है, ठीक है ना। लेकिन कोई स्ट्रेस ऐसा होता है ना जो लॉन्ग टर्म में अपने माइंड में जगह बना लेता है और उससे आप एकदम कंप्लीटली डाउन हो जाते हो। वो आपका सोमेटिक मतलब कि आपके फिजिकल ऑर्गन्स के ऊपर इंपैक्ट लगाना शुरू कर देता है। आज की जो आजकल की जो मतलब जो फैंसी बीमारियां है, उसमें एक भी बीमारी ऐसी बताओ जो आध्यात्मिक है या फिर आदि दैविक है। तीन कैटेगरी में वो आध्यात्मिक में ही पहुंचती है, आदि भौतिक नहीं है, वो आदि दैविक नहीं है। ओके, दैट इज ओनली आध्यात्मिक। स्ट्रेस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, ब्लड प्रेशर ले लो, डायबिटीज ले लो, कैंसर भी ले लो, ठीक है। वो बोलते हैं कि आपको धूम्रपान और ये सब करने से कैंसर होता है, बट कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है उस बीमारी को आपके अंदर घुसाने के लिए, ठीक है ना। सो मेजर इफ यू आर हेल्दी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सारे जो पीने वाले हैं उनको कैंसर हो जाता है, या फिर सारे जो स्मोक करते हैं उनको कैंसर हो जाता है, बिकॉज दे माइट बी मेंटली आई मीन फिट। जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं उन पे हावी नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सिक्योर देमसेल्फ। ओके, सो stress is more injurious or dangerous than any other thing you are having in this world. That is what I would like to say. Okay, now let's come to क्लेश। क्लेश क्या है? ये अभी आपको त्रिताप के बारे में समझ में आ गया। त्रिताप के बारे में कोई पूछेगा या क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका जवाब देना है। आई होप आसान भाषा में आपको इस चीज को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। क्लेश, क्लेश का मतलब होता है कि ये जो आध्यात्मिक बीमारी है ना, नीचे थर्ड वाली, वो क्यों उत्पन्न होती है। एक तो सबसे पहले वी अंडरस्टूड दैट दिस इज अ मेंटल इलनेस, ओके, मेंटल इश्यू। नाउ बिकॉज ऑफ दीज 5 क्लेशेस, दीज थिंग्स कम इन आवर माइंड, और ये जो स्ट्रेस है वो हमारे माइंड में आता है। ओके, तो क्लेशेस के बारे में पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। ये इसका एक और अलग से आपका प्रेजेंटेशन है लेवल 1 के लिए। दिस इज जस्ट अ ब्रीफिंग। तो क्लेशा इज नथिंग बट अविद्या। अविद्या का मतलब रॉन्ग नॉलेज, ठीक है। रॉन्ग नॉलेज मतलब कोई चीज के बारे में आपको नहीं पता है, फिर भी आप उसके बारे में बहस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, या फिर उस तरफ जा रहे हो। राइट नॉलेज अगर आपके पास है तो यू विल नॉट गेट इनटू दैट पर्टिकुलर इशू। ओके, बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज यू आर इन्वॉल्विंग इन सच स्ट्रेसफुल थिंग। अस्मिता, अस्मिता इज नथिंग बट ईगो। ओके, बिकॉज ऑफ योर ईगो यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच यू मे नॉट लाइक टू, बट ईगो बीच में आ रहा है, उसकी वजह से यू वांट टू डू दैट। राग, राग इज नथिंग बट अटैचमेंट। ओके, ड्यू टू द अटैचमेंट, अभी क्या होता है ना कि हम जॉब करते हैं, बॉस हमारी बैंड बजा के रखी हुई है, बिजनेस नहीं हो रहा है,
फिर भी हमको करना पड़ रहा है बिकॉज वी आर अटैच्ड टू अवर फैमिली। ठीक है ना, हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, हम जॉब छोड़ेंगे तो उनको कैसे पालेंगे पोसेंगे। सो ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगेन कि यू हैव टू जस्ट लीव द जॉब एंड गेट, ये राग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको अटैचमेंट डिटैचमेंट का भाव लगा दो। you are coming into balance, you should know, so that you can find a way। अगर हमको पता ही नहीं है कि these are the क्लेशेस और इसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का मेरा जो स्टेप है उसमें मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, तो आप फिर उसको क्योर नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू नो, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि यस आई थिंक आई शुड स्विच माय जॉब और आई शुड फाइंड समथिंग। ठीक है, मुझे 2 पैसा कम मिलेगा बट आई एम मेंटली फिट। शायद हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी जो है 5 साल आगे ज़्यादा चलेगी अगर मैं हैप्पी रहूँगा तो, खुश रहूँगा तो। एंड हैप्पीनेस की डेफिनिशन कैन नॉट बी रिलेट विथ ओनली मनी। द्वेष, द्वेष इज़ लाइक, द्वेष की भावना मतलब बोलते हैं ना कि किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखना, ठीक है? यू डोंट लाइक समवन, तो द्वेष की जो भावना है वो उत्पन्न होती है उसमें। सो दैट आल्सो लीड्स टू स्ट्रेस। एंड अभिनिवेश, अभिनिवेश इज़ नथिंग बट फियर फ्रॉम डेथ। आपको मौत से डर लगना, ये भी एक स्ट्रेस है। जब आपको मौत से डर नहीं लगेगा ना, तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हो कि ठीक है ना, वो तो आने वाली एक दिन आएगी और चले जाएँगे। आए हैं तो जाएँगे और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये सब तो मटेरियल वर्ल्ड में रहने ही वाला है। मतलब आप निकलोगे, मैं चले जाऊँगा तो मुझे कोई ठीक है 5 दिन याद करेंगे, उसके बाद तो उनका लाइफ़स्टाइल वैसे जैसे चलना है वैसे चलते रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा लाइफ़ अपने चक्कर में, और आजकल तो पॉपुलेशन भी इतनी हो गई कि आप किसी को टाइम नहीं, राइट? तो these are the क्लेशास, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। एंड 3 तापास आर आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। अब आते हैं हम योगिक प्रिंसिपल फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस, जो कि हमने अब ये डिस्कस तो कर लिया कि हेल्थ क्या होता है, ये क्यों होता है हमारे साथ में इश्यूज, अब इसको क्योर कैसे करना है। तो सेज पतंजलि ने बोला गया है अष्टांग में, यम नियम नीड्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू एंजॉय होलिस्टिक हेल्थ। तो कल जैसे हम बात कर रहे थे कि अष्टांग के 8 लिम्स है ना, उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 है, ठीक है? तो हम यम नियम को छोड़ देते हैं साइड में एंड देन वी डायरेक्टली जंप ऑन आसन। दैट इज वेरी, that is not a good practice though. So we should also follow yamas and niyamas which is mentioned in Patanjali Yoga Sutra। यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना? चोरी नहीं करना, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अहिंसा मतलब कि किसी को हर्ट नहीं करना। ये जो छोटी-छोटी चीजें हमें जो बचपन में सिखाई जाती थी, सेम चीज इसमें योगा में दी गई है, लेकिन हमको क्या है, वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, तो अभी अहिंसा मतलब सब चल रहा है। नॉन स्टीलिंग, आई एम श्योर कि ऐसे तो काम हम सब नहीं करते, बट स्टिल इट इज रिटन। अपरिग्रह, सॉरी, अपना या नियमास में जैसे कि शौच, संतोष, शौच मतलब कि क्लीनिंग ऑफ योरसेल्फ, संतोष की भावना, संतोष मतलब कि कंटेनमेंट, मतलब ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन उसमें ना बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड जो रखना है। तो सिमिलरली 5 यमास है, 5 नियमास है जिसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो उनका पालन करना स्ट्रिक्टली, तो आपकी होलिस्टिक हेल्थ कहीं न कहीं बनी रहेगी, यू कैन एन्जॉय दैट। योग वशिष्ठ में बोला गया है, आचार विचार नीड्स टू बी फॉलोड। ओके, योगा के जो 4 पिलर है, इस पे योग खड़ा हुआ है। आचार, विचार, आहार, विहार, ठीक है? खाली आपने आज आपका आचार इज योर बिहेवियर, ठीक है? हाउ यू बिहेव, हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मतलब झगड़ा ये सब कर रहे हो सोसाइटी में, तो फिर अभी कैसे मतलब स्ट्रेस से बाहर निकल पाओगे आप। सिमिलरली विचार इज योर मेंटल थिंकिंग, यू नो हाउ यू थिंक, ओके, दैट इज ऑल्सो important। So when you are following yamas and niyamas, your vichar is going to get changed। आहार एंड विहार, आहार इज नथिंग बट योर डाइट। सो अब आप इसमें ना अभी आगे चल के हम सात्विक फूड के सत्व गुण के बारे में सुनेंगे, ठीक है ना? सात्विक फूड के बारे में तो शायद अपना अपना प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन सात्विक फूड जो है वो कहीं ना कहीं आपका, इसमें बोला गया है कि यू शुड बी हैविंग सात्विक फूड ओनली, सो दैट योर मेंटल, you know, your overall health is completely fine। And vihar is nothing but the practices which you do, फिजिकल प्रैक्टिसेस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें आपको करने से आपको एक होलिस्टिक हेल्थ हेल्थ की तरफ
पढ़ने को मिलेगा, बट योग वशिष्ठ में इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, योर आचरण एंड योर विचरण, विच हेल्प यू टू डेवलप सत्व गुणा। सत्व गुणा जो अगर डेवलप होता है आप में, तो आप मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो सत्व गुणा के बारे में अपन अब आगे चल के पढ़ने वाले इसी प्रेजेंटेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर थ्री गुणास विच इज देयर इन द प्रकृति। प्रकृति में प्रकृति इज मेड अप ऑफ थ्री गुणास, ठीक है, रजस तमस एंड सत्व। तो ये तीन गुण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यम नियम, वापस से मैं एक बार ये देखो यहाँ पे आ गया है फिर से, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसका पालन हमें करना है इफ यू वांट टू बी हेल्दी। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि आपने खाली अच्छा खाना खा लिया तो यू विल बी हेल्दी। ठीक है, आपके ऑर्गन्स शायद अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जब आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपके ऑर्गन्स को वैसे ही डैमेज करेगा, भले आप दिन भर में मतलब जो हेल्दी खाना ही खा रहे हो या डाइट स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो या लेट्स से आसन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक आप मतलब प्राणायाम नहीं करोगे, ब्रीदिंग फोकस, ये सब अवेयरनेस आपके अंदर बिल्ट नहीं होगी, एंड ये बिल्ट होने के बाद आपको धीरे धीरे ये जो यमास एंड नियमास है वो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फॉलोइंग बिकॉज योर अवेयरनेस वाज ऑन अ हायर स्टेट। शौच संतोष तपस स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। सो शौच इज नथिंग बट क्लीनिंग योरसेल्फ, संतोष इज योर कंटेनमेंट, तप इज योर हार्ड वर्क, स्वाध्याय इज योर सेल्फ स्टडी, एंड ईश्वर प्रणिधान इज सरेंडर टू द गॉड। कुछ नहीं, लास्ट में तो बस आप तो सरेंडर कर दो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यू हैव टू स्टडी, आई मीन स्टेप्स में अगर ये दोनों को देखोगे ना तो आपको खुद के ऊपर अध्ययन करना जरूरी है, मतलब कि इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। ठीक है ना, स्टडी योरसेल्फ मतलब कि खुद के ऊपर अध्ययन करना कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। स्वाध्याय में बहुत सारी चीजें और आती है। देन इफ समथिंग इज नॉट इन योर हैंड, यू जस्ट सरेंडर इट टू द गॉड, इट्स ओके। So daily practice of niyama suggested by Sage Patanjali are recommended habits for healthy living. All right. तो ये तो हो गया आपका हेल्दी लिविंग के बारे में बताया कि आपको लगेगा कि यार ये हेल्थ एंड वेलनेस का बोला है और मेरे को तो कुछ खाने के लिए नहीं बोला। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, बट देन मेंटल डाइट के बारे में इसमें ज्यादा बताया है। मेंटल डाइट इज योर, बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक चैप्टर आएगा, लेकिन मेंटल डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल डाइट।